We are not short of any prizes. You can see it's full of prizes on the table. So there's a prize for best team name. So the sheet which you have got, आपने अपना टीम का नेम रख लिया है सबने? Yes sir. और सबने मिलके कोलैबोरेट करके रखा है ना? Yes sir. जैसे किसी ने एक ने बोला कि मेरी मर्जी और सबने मिलके किया ना? Very good. Okay. Can I have one sheet? Can I have one answer sheet? जो कोई सी दे दीजिए अभी. Okay. Great. So everybody has filled their names and पूरा नाम लिखते तो अच्छा रहता because there are a lot of same names. हालांकि इसमें तीनों नाम्स are very uncommon, लेकिन put your full name, okay? And team name is good. Okay, so top 6 qualifies, maximum of 1 team per school. That's why we gave chocolates for the one who have brought more teams, so that they don't get discouraged from next time. And there was a question कि अगर बहुत सारी टीम्स हैं और एक स्कूल का एक टीम लेनी है तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? There is inbuilt tiebreaker, which I hope all of you understand what is inbuilt tiebreaker. And to be very specific and to be very open, 11, 12, 13, 14 and 15 questions are the tiebreaker questions. Okay? Okay, so now final question before we start the quiz is, आप सबने बोला था कि questions easy होने चाहिए, तो how many of you want easy questions? सबको, आपको नहीं. Okay, how many of you want difficult ones? So mixed batch. तो दोनों की सुने, थोड़ा सा easy, थोड़ा सा difficult, right? Should we do that? So let's clap for Jigyasa for a quiz which is both easy and difficult. और वो कैसे करने वाले हैं उसका फॉर्मेट आपको बताते हैं. तो you want options? ABC की तरह? How many of you want 4 options? A, B, C, D? Everyone? Okay. And how many of you don't want options कि हमें सब आता है या you want to show our full knowledge? कोई भी नहीं है? क्या बात है? Confidence, थोड़ा confidence लाइए. So we have done a mix of it. First 10 are multiple choice questions. 1 to 10 would be multiple choice questions. A, B, C and D. You have to just mention A, B, C, D. उसका पूरा नहीं लिखना है. Suppose A is Jawaharlal Nehru, so you don't have to write A Jawaharlal Nehru, just write A. Okay? इसलिए हमने इसको boxes भी बना दिए थे जिससे कि कम लिखें हम. And 11, 12, 13, 14, 15 are the questions which are to be written in 1 or 2 words. Okay? अच्छा लग रहा है? Yes sir. Everybody is happy? Okay. Great. And finally, scoring आपको समझाते हैं. Let's go on to the next slide. So ये सब जिज्ञासा जो आपकी थी हमने पूरी कर दी. And moving on to the next one. So this is the scoring pattern. For total 15 questions, first to 10, आप सबने बोला तो हम वैसे ही कर रहे हैं. ABC type. But you don't want people to do तुक्का, right? You know तुक्का? तो उसके लिए क्या इलाज है? There's a negative. So be confident of what you're writing. There will be a negative -1, +1 for right. And if you're not sure, just leave it blank. You won't get any points for that, right? Okay. देखिए हमने इतने सारे रूल्स बताए तो ऑलरेडी फोन आने लगे हमें कि ऐसे डिफिकल्ट रूल्स मत सेट करो. Is it difficult? Understood everybody, right? 1 point, 1 to 10 questions for right answer, -1 for wrong answer, and no points if you don't attempt. Try to do minimal cutting here if there's a tiebreakers, and if you see cuttings, जिसके cuttings होंगे, that will lose out our team, right? उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन के टाइप ब्रेक्स करेंगे. 11, 12, 13, 14, 15 are no negative questions and they have double weightage, 2 points. Okay? So आप सब लोग मैथ्स में, you are all good in maths, right? So how much you can score maximum? 20. Great. And how much you can score minimum? Minus? -10. Brilliant. That's a great answer. -10, you got it? अगर सारे रॉन्ग करेंगे तो -10. If you do it all correct, +20. आपका नाम क्या है? संकेत. Okay. आप ही का है ना पेपर? So let's clap for him and you correct this paper. So should we start now? Okay. Can you dim the lights slightly? अगर हो सकता है dim कर दीजिए हल्का सा lights. अगर हो सकता है तो. And be honest to yourselves. Just discuss within yourselves.
और आपके बराबर में जो टीम बैठी है दूसरे स्कूल की है, तो डोंट बी लाउड, दे कैन गेट अ हिंट ऑफ इट, राइट? ओके, वन फाइनल टाइम द टीचर्स एंड द फ्रंट रोज गेस्ट्स, लेट्स क्लैप फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द जिज्ञासा ओपनिंग क्विज इन ऑल वन, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. चलिए, questions will not be repeated, so be very quick. Here comes the first one. Here on your screen. आइए next. ये रहा आपकी स्क्रीन पर. अब जैसे हम अब बोलेंगे ना, नेक्स्ट चले जाइए. आ रहा है केबीसी का मजा आ रहा है? ओके. अरे क्या कर रहे हो? बस हाँ ये रखना है. Which is the largest district of India? इंडिया में आप चाहते थे क्वेश्चंस पूछे? ऑप्शंस आर ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी ले या डी कच्छ. बीकानेर, जैसलमेर, ले, कच्छ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट भारत का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल से, बाय एरिया? ए बी सी डी, दैट्स व्हाट यू हैव टू पुट इन क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग ऑन. ठीक लग रहा है क्वेश्चन? गेटिंग इट? ओके. इंडिया, किस किसने इंडिया के लिए बोला था इंडिया के क्वेश्चंस रखो? सेटिस्फाइड? ओके. मूविंग ऑन. राइट, यू कैन सी दिस स्क्रीन, राइट? इसका प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई? दिख रहा है सबको? गुड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. 2 पे आ जाइए. ओके, घबराइए मत, वी आर ऑल हियर. स्पोर्ट्स, इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स मींस इंडिया में स्पोर्ट्स माने क्रिकेट, राइट? बट क्रिकेट सुधीर जी को पसंद नहीं है, तो मैं बोल दिया था कि क्रिकेट पे एक भी क्वेश्चन तो रखना. तो हमने क्रिकेट पे नहीं रखा है. व्हाट इज द बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द वर्ल्ड? नो, एज अ कंपटीशन. ओलंपिक्स. क्वेश्चन ऑन ओलंपिक्स. ओके, हियर इट कम्स ऑन द स्क्रीन नाउ. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव नॉट येट होस्टेड ओलंपिक गेम्स? ऐसा कौन सा शहर है जिसने अभी तक ओलंपिक गेम्स की पोस्टिंग नहीं की है? इज इट ए लॉस एंजलिस? अभी तक नहीं की है. इंग्लिश को थोड़ा समझिए. इज इट ए लॉस एंजलिस? इज इट बी ज्यूरिक? इज इट सी म्यूनिक? और इज इट डी मैक्सिको सिटी? ए बी सी डी, दैट इज द ऑप्शंस यू हैव टू गिव. क्वेश्चन 2 पे नाम मत लिखिएगा, चेकिंग में प्रॉब्लम आएगी नहीं. ए बी सी डी. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 3. हिस्ट्री. लव इट? क्या बात है. क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा. अब काइंड ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर. रामकृष्ण मठ, जिसको हम रामकृष्ण मिशन भी बोलते हैं, ये किन्होंने स्थापित किया था? हु सेट अप रामकृष्ण मठ? इज इट स्वामी विवेकानंद? A, is it B, Ramakrishna Paramhans? Is it Sharda Devi? Or is it D, Totapuri? Totapuri is a नाम, हमने ऐसे नहीं रख दिया. A, B, C, D, Vivekanand, Ramakrishna Paramhans, Sharda Devi and Totapuri. Okay, question number 4. और जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है उसमें जवाब दीजिएगा, otherwise you will get negatives. Question number 4 on your screen up. From the world of geography, Greenland अभी बहुत सुर्खियों में था, so it's kind of current affairs as well. What is the capital of Greenland? Is it A, Reykjavik, B, Minsk, C, Nuuk या D, Riga? हाँ, तो हम हिंदी में बोल रहे हैं. हिंदी में तो प्रश्न वहां पे हिंदी में लिखा है तो बड़ा मुश्किल है, पर हिंदी में बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है. किसको नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हिंदी बोलने में. किसने बोला है मैम? हाँ बताइए, क्या दिक्कत आ रही है? इनको माइक देंगे, माइक ये थोड़ा जोर से बोलिए. हाँ मैं कर तो रहा हूँ हिंदी में कन्वर्ट, कब नहीं किया मैंने. अगर जहां भी आपको लग रहा है तो मैं फिर से बोल दूंगा, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बीच में. एक बार फिर से पूछ लीजिए जिनसे क्या आपका प्रश्न था. सर एक बार इंग्लिश में बोल के फिर एक बार. बिल्कुल बिल्कुल. और मुझे मारवाड़ी भी आती है.
ओके चलिए, बिकॉज आई हैव बीन ब्रॉट अप इन जोधपुर राजस्थान, सो ओके क्वेश्चन नंबर 5. So current affairs, from the world of current affairs, here it comes. IIT JEE एग्जाम्स पता है सबको? ओके, IIT JEE एग्जाम्स अभी मैं सिर्फ हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है? तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा टॉपर्स इस बार कौन से राज्य से आए हैं. क्या वो उत्तर प्रदेश है, या बी राजस्थान है, या सी आंध्र प्रदेश है, या डी महाराष्ट्र है? आपको समझ में आ गया बच्चों जो पूछ रहे थे? कहीं भी बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा, आपको जहां भी लगे आप पूछ सकते हैं. ओके, सो IIT मेंस 2025 जिसका अभी रिजल्ट्स आए हैं, परिणाम घोषित हुए हैं, कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा टॉपर्स उस राज्य से आते हैं? तो इस क्वेश्चन को अगर आपको आता भी नहीं हो, हिंट्स दे दें. हाउ मेनी ऑफ यू वांट हिंट्स? ऑलमोस्ट एवरीवन. कोई बात नहीं. तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कि कौन सा राज्य हो सकता है और क्यों हो सकता है. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट. ठीक है, समझ में आ गया हिंट मेरा? किससे को समझ में आया हिंट? चलिए, माय जॉब इज डन. ग्रेट. ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6 from the world of culture and heritage, here it comes. Machu Picchu, a UNESCO World Heritage Site. अब इसको मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, पर ये यूनेस्को की जो, कौन बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हिंदी में बता सकते हैं क्या कहते हैं उसको? हिंदी से डिमांड आएगी नहीं, पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी. तो यूनेस्को विरासत, बिल्कुल कौन बोल रहे हैं? लेट्स क्लैप फॉर हिम एंड गिव हिम अ चॉकलेट. आप आगे दे दीजिए, आप टीचर है ना? वेरी गुड. लेट्स क्लैप फॉर विरासत. हाँ, यूनेस्को विरासत क्षेत्र बहुत सारे घोषित किए हैं यूनेस्को ने. यूनेस्को को तो यूनेस्को ही बोल सकते हैं. और आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री में मैचू पिचू आता है. माचू पिचू, इज इट ए पेरू, इज इट बी मैक्सिको, इज इट सी इटली, और इज इट डी जॉर्डन? ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7. अभी आराम से कोई बात दिखा दिया तो ठीक है. दिस इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स और सिविक्स, जैसे कि आप बोलते हैं अपने. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? जो भारत का संविधान बनने से पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की गई थी, उसके मुखिया अध्यक्ष कौन थे? वॉज इट लॉर्ड माउंटबेटन? Was it D. Rajendra Prasad? Was it C. B.R. Ambedkar? Or was it D. Rajagopalachari? Okay, no discussions. हाँ, आप तो कर सकते हैं. टीचर्स ना करें डिस्कशन, टीचर सुनाई देगा. ओके, मैम को पूरा चॉकलेट का पैकेट दे दो, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हिंदी आती है. बिल्कुल सही. नहीं, एक और हाँ बिल्कुल. लेट्स क्लैप फॉर हर. कौन सा स्कूल था? सेंट एंसलम, डिस्पाइट बीइंग अ मिशनरी स्कूल. हिंदी बहुत अच्छी है. लेट्स क्लैप फॉर. और मैं भी एक मिशनरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे हिंदी सिखाता हूँ. इशारे कर रही हो? ओहो, ऐसा मत कीजिए. एक पर्सन खड़े हो जाइए यहाँ पे, सपना का. और ये तो बहुत ही गलत बात है अगर ऐसा हो रहा है तो. हाँ, ये होता है, केबीसी में भी होता है. तो केबीसी में भी लाइट्स इसलिए डिम की, तभी हमने बोला लाइट्स डिम कर दीजिए. तो केबीसी में भी कई बार ऑडियंस करती है सर. ये दिस इज वेरी बैड. हूएवर इज डूइंग, नॉट डू प्लीज. ओके, हम भी आप नजर रखेंगे, आपने पिन पॉइंट किया तो. बट आप रिलैक्स हो जाइए, डोंट वरी. ओके, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट. ओके, सो एनी हिंट्स यू वांट? कौन हिंट्स चाहता है? बहुत कम है, बहुत सारे हैं. हिंट ये है कि जो आप सोच रहे हैं वो आंसर नहीं है. जो आप सोच रहे हैं वो आंसर नहीं है, जो आपको लगता है वो आंसर नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. अभी रुक जाइए. अभी सब कुछ कवर हो गया कि कुछ बचा है? जो आपने बोला था कवर हो गया ना? साइंस, ओ रुको, साइंस रह गया. चलिए साइंस डालते हैं इसमें. लेट्स
Go to the science. Question number 8. ये रहा. Who is the founder of Amazon? Amazon के founder कौन है? आप सबने Amazon यूज किए? Amazon कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी. इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजो, एलन मस्क, स्टीव जॉब्स या लैरी पेज. A, B, C, D. A is for Jeff Bezos, B is for Elon Musk, C is for Steve Jobs, and D is for Larry Page. Okay? हो गया? साइंस कवर हो गया? हाँ या ना? बहुत धीरे से आवाज आ रही है. नहीं हुआ कवर? नो सर, कौन बोला? नहीं, टीचर्स यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरेक्ट विद मी. वी विल इंटरेक्ट ओवर टी लेटर ऑन. ओनली स्टूडेंट्स. हाँ, कौन बोला नहीं? आप बोली ना शायद. कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है. एक और डाल देते हैं. एक और साइंस का. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा. फ्रॉम योर बुक्स. कहीं मैं बोला था बुक्स एनसीईआरटी से पूछिए. क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर बुक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी रखने पड़ते हैं. इन विच मीडियम डज लाइट हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी? एनसीईआरटी बुक्स. somebody said from here. this question is for you. in which मीडियम, कौन से माध्यम से जो प्रकाश होता है उसकी सबसे तीव्रता सबसे ज्यादा होती है? हिंदी अच्छी है मेरी? तीव्रता, प्रकाश, समझ में आ गया? गति. तीव्रता नहीं, गति. हाँ बिल्कुल, गति. A is for glass, B for diamond, C for water, D for vacuum. अभी इनको हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है ना. ग्लास, डायमंड, वाटर एंड वैक्यूम. आप में से किसी को चाहते हैं कि हिंदी में बोलने की तो जरूरत नहीं है ना इनको? ओके, प्लीज स्विच ऑफ योर फोन. किसके फोन पे हैं? ओके, सो डन विद साइंस. खुश हैं? कितने? 9 में से 9 किसके राइट है? किसको लगता है कि 9 में से 9 राइट है? नोबडी. कोई तो कॉन्फिडेंस दिखाइए. ओके, आप हाथ खड़ा कर रही थी, फिर आपने देखा कोई नहीं खड़ा कर रहा तो मैं क्यों करूं? ऐसा थोड़ा होता है लाइफ में. कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस है ना. ये हुई ना बात. लेट्स क्लैप फॉर देम. अभी तो पेपर चेक करेंगे तो पता लगेगा. बट लेट्स क्लैप फॉर द कॉन्फिडेंस. फाइनल क्वेश्चन, केबीसी टाइप. यू आर एंजॉयिंग द केबीसी टाइप? मजा आ रहा है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस. ये रहा आपके स्क्रीन पर. अब हमने सोचा 10वां क्वेश्चन सबसे आसान रखते हैं. MS धोनी नाम तो सुना होगा, एंड स्मृति मंदाना, ये क्रिकेट वुमेन प्लेयर है. इनका नाम सुना है सबने? तो आपको बताना है कौन से बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है. ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है कौन से एड्स में आती हैं, किस बैंक के एड्स में आती हैं. हिंट चाहिए? ऑप्शंस आर UBI, B is SBI, C is RBI, D is PNB. हिंट्स किसको चाहिए? ये तो सबको पता है ना. ये आंसर तो सबको पता होना चाहिए. सबको पता है. सबको पता है इज द हिंट. जो समझ गए हैं वो समझ जाएंगे. जो टेलीविजन देखते हैं आजकल ज्यादा, सबको पता है इज द पंच लाइन. और दैट कम्स टू एन एंड ऑफ आवर पार्ट 1. अच्छा लगा आप सबको? कोई टेंशन नहीं हुई, किसी के पसीने नहीं छूटे, है ना? By the way, let's clap for this wonderful auditorium for being such a climate controlled. और I am giving a disclaimer. Disclaimer तो पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं. अगर आप पसीने छूटेंगे तो don't blame on the auditorium, blame it on Anurag Krishna. 11th to 15th क्वेश्चन आप लिखना पड़ेगा थोड़ा, है ना? Okay, moving on. तो 11th to 15th क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स मिलेंगे. कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसकी वेटेज डबल है. So it's almost like playing the first 10 and this is equal. Double weightage, no negatives. It is win-win situations. और मैडम ऐसे भी नहीं कर सकती ना इसको, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 on your screen now. Identify her. Identify her from the world of entertainment. और अब बताइए किस किस को हिंट चाहिए. ओके, तो सर डिस्कस कर रहे हैं. तो सर आप हिंट देना चाहेंगे? मैं आपकी तरफ से हिंट देता हूँ. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? अलवर. अलवर इज द हिंट.
ये शी बिलोंग्स टू अलवर। अभी सुधीर भाई ने हमसे पूछा था कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो पहले के पूछते हैं कि नहीं, तो हम कंटेक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। वी आर स्टैंडिंग इन अलवर, शुड वी नॉट आस्क अबाउट अलवर सेलिब्रिटी? पूछना चाहिए ना। लेट्स क्लैप फॉर हर। अलवर बॉर्न एंड वन ऑफ द फ्यू सेलिब्रिटीज ऑफ अलवर, इसलिए हमने क्वेश्चन रखा। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑन स्क्रीन नाउ। सबसे बड़ा रुपया, है ना? तो ऐसा प्रश्न हो जो फाइनेंस पे ना हो या किसी कंट्री के बारे में ना हो, रुपये के बारे में हो, ऐसे कोई क्विज नहीं होती है। आपको यहाँ पे रुपीज नजर आ रहा है लिखा हुआ? दिख रहा है आपको रुपीज लिखा हुआ सबको? आपको बताना है कौन सी कंट्री का ये नोट है। विच कंट्री करेंसी इज दिस? एंड हिंट्स किसको, कितना को चाहिए हिंट्स? ओके, सो वन ऑफ द हिंट इज कि ये डीमोनेटाइजेशन के बाद ये नोट नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये इंडिया का नोट नहीं है। और कोई हिंट चाहिए? ओके, बोलना नहीं है, बस हिंट चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ या ना पूछो, बताओ।